Hello everyone, in today's video we are going to discuss chapter number 1 of class 9th mathematics, that is number systems. Here are some balls on the screen, and if I tell you to count the number of balls, you will start like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Naturally, whenever we have to count something, we start from 1, then 2, 3 and so on. This list of number is called as natural numbers, which are denoted by capital N, which includes 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinite. There are 0 balls now on the screen. If we include this number 0 in the list which we saw earlier, we will get a set of whole number. Whole number को हम denote करते हैं capital W से, and this list of numbers includes 0, 1, 2, 3, 4 and so on till infinity. Now here is a number line. You see, from this number line we have selected 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Now ये जो left side पे negative numbers है, अगर हम इन्हें भी include कर ले, so here we will get a set of integers which is denoted by capital Z, which includes all the negative integers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and till infinity. Integers are denoted by Z because of the German word which is Zahlen. Zahlen means to count. So due to that, we use the symbol capital Z for integers. So now we will talk about the fourth set of number, which is called as rational numbers. The definition of rational number is a number R is called rational if it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. That means कि कोई भी नंबर जिसे हम P upon Q के फॉर्मेट में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सके, जिसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है, ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर. एग्जांपल 3 upon 4, 5 upon 6, 7 upon 2, 1000 upon 3, 3 upon 1000 एक्सेट्रा. बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है. ओके, रैशनल नंबर्स का जो वर्ड रैशनल है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, एंड जो सिंबल है रैशनल नंबर का वो है Q, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट. नाउ हमने जो नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर्स देखा, इंटीजर्स देखा, वो सारे भी रैशनल नंबर्स है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स का पहला नंबर है 1, बट 1 को हम लिख सकते हैं 1 upon 1. सिमिलरली 2 को लिख सकते हैं 2 upon 1, 3 को लिख सकते हैं 3 upon 1. तो हर एक के नीचे आप 1 लगा के उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे, एंड आप उसे P upon Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. So here the conclusion is all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers are rational numbers too, because they can be expressed in the P upon Q form. So here the fact is N is a subset of W, is a subset of Z, is a subset of Q. Now subset means what? Simply it means that all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, all integers are rational numbers. ओके इस तरह से ये लॉजिक चलेगा, मगर इसका रिवर्स बैक ऑर्डर ट्रू नहीं होगा. दैट मीन्स कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ये जो फैक्ट है हमें ट्रू और फॉल्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा. नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक विच इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ लेट अस सी, यहाँ पर हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1 upon 2, जिसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है. ओके, नाउ लेट्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट अस 2. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 हो गया 2 और नीचे 2 2 हो गया 4. सो हियर वी गॉट 2 upon 4. बट ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट है, दोनों का वैल्यू इक्वल है. सिमिलरली अगर 2 के जगह हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो वी विल गेट 1 multiplied by 3 3 and 2 multiplied by 3 we will get 6. We got 3 upon 6. ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये तीनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है. तो इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर से. ओके, ये सभी का वैल्यू इक्वल होगा. ठीक है, सो अगर हमें कभी रिप्रेजेंट करना है इन सभी में से कोई एक रैशनल नंबर्स को, सो हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे जब सबका मीनिंग एक ही है? तो so we will represent 1 upon 2. ओके, ये सभी के लिए 1 upon 2 will be represented. That means कि ऐसा नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ओके, सब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए. दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा.
Now one thing that has to be noted is that there are infinite rational numbers between any two given rational numbers. Okay, that is ये 0 और 1 के बीच में there are infinite rational numbers. So इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है और अभी हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1. सो वी विल मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड साइड एंड लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1. So the first question is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? Yes, 0 is a rational number. So in answer, we'll write yes, 0 is a rational number. We can write it in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Example 0. So 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3. कोई भी नीचे नंबर लगा दो 0 के अलावा एक्सेट्रा. All the values will be equal to 0. So this is the answer. We will go for the question number 2 and it is find 6 rational numbers between 3 and 4. ओके हमें फाइंड आउट करना है 6 रैशनल नंबर्स. ओके 6. तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है 6 फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो उससे ग्रेटर वैल्यू हमें जो दो नंबर्स दिए हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने हैं. ठीक है, तो बेसिकली 6 से बड़ा नंबर लेट्स से 7. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग 7 इन द न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. ओके सो दो नंबर हमें यहाँ पे दिए हैं 3 और एक है 4. तो 3 यानी कि नीचे 3 अपॉन वॉट देर इज नथिंग मीन्स देर इज 1. इट इज 3 अपॉन 1. सो लेट अस मल्टीप्लाई 7. यहाँ पे मैंने 7 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में एंड ये डिनोमिनेटर में. सो ये नंबर हो गया 3 7 ज़ा 21 एंड सॉरी यहाँ पे नीचे 1 है 1 7 ज़ा 7. तो यहाँ पे मैंने 3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन किया 21/7 एंड 4/1 में भी सेम चीज़ करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 7/1 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 4 7 ज़ा 28/7. सो अभी ये 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 28/7. 21/7 और 28/7 21 और 28 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज राइट 21 के बाद आता है 22. We will put 7 as a constant down. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7 are 6 rational numbers. Rational numbers between 3 and 4. So here we got it. तो बेसिकली आपको जितने रैशनल नंबर्स पूछे हैं उससे बड़ा नंबर यानी कि यहाँ पे मैंने 6 फाइंड आउट करने थे 7 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंड सिंपली ये दोनों के बीच के जो नंबर्स थे उनके नीचे अपॉन 7 लगा के वी रोट द 6 रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. सो हियर वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. 5 रैशनल नंबर्स करने हैं. सो 5 से बड़ा लेट्स से वी मल्टीप्लाई 6. सो मल्टीप्लाइंग 6 in the numerator and डिनोमिनेटर में. सो जो नंबर हमें दिए है वो है 3/5. सो 3/5 ये मैंने मल्टीप्लाई किया 6 और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई किया 6. सो इट बिकम्स 3 6 ज़ा 18 एंड 5 6 ज़ा 30. एंड सिमिलरली 4/5 में भी यही करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6. 4 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24 एंड 5 6 ज़ा 30. सो हियर वी गॉट 18 और 24 के बीच में यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are 5 rational
numbers between 3/5 and 4/5. Okay. Now the fourth question is true or false. जिसमें पहला क्वेश्चन है every natural number is a whole number. The statement is true because natural number is a subset of whole number. Right? हमने ये फैक्ट देखा था in the introduction part. अब जो सेकेंड क्वेश्चन है and that is every integer is a whole number, तो ये false हो जाएगा because every integer is not a whole number. है ना, इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर्स आते हैं जो होल नंबर में नहीं होते, सो दिस इज फॉल्स. द थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर. दैट इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि रिवर्स बैक, जैसे कि मैंने बताया था, रिवर्स बैक आओगे तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा. एवरी रैशनल नंबर यानी कि क्यू इज नॉट ए सबसेट ऑफ होल नंबर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. एंड हेंस वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1.